ઉંબરામાં માં બેઠી છે, બાપ બેઠો, આપણે સપન ભોગ ભોળાના ઓલા પણ ચડાવી ગયા દ્વારકાધીશને. દ્વારકાવાળો કે તારે ઘેરે બેઠો એને પહેલાં રોટલો દે. વૃદ્ધાશ્રમની આપણે કોઈ જરૂર નથી. આપણે મા બાપની સેવા કરી, ગાયની સેવા કરી. અને ગાય એક વસ્તુ એવી મહાન છે કે મેં તો આજ સુધી નક્કી કર્યું, વલ્લભભાઈ તમે આવી ગયા ને 1-2 વાર અમારે વલ્લભભાઈ ત્યાં મિટિંગ કરી ગયા, પણ હું મિટિંગને નથી માનતો. હું તમે એને અપનાવો, એનું આપણે છે ને એનું સીધું એને તમે અમલ કરો. અમલની જરૂર છે. વાત કરવી પહેલી વાત છે, અને અમલ કરો બીજી વાત છે. અમલ કરો એટલે અમે બીજું હોત પણ કર્યું છે. ગાયને આપણે સામે તમે આવો ને, એક પાળો 4-6ની સીધી અમે ગટર ગાળી. ગાયની શિંગડાનું ખાતર ઘણા ખાતર આવે, તો એની અંદર એક ગાયને પણ ખોલવા કોઈને નહીં દેવાની, સમારને. એ ગાયને ન્યા સીધી સમાધિ દેવાની. એ ગાયની સમાધિ પણ તમારું વાતાવરણ એટલું બધું શુદ્ધ કરે છે, એની વાત કરોમાં. હા, અને ગાયનું હવન ભાઈ ખબર છે બધી લાલજીભાઈને, કાંઈ તો વાતો ઘણી થાય પણ નથી કરવાની, કે ગાયનું ખાલી હવન કરે ને તો તમારી વાડીમાં કે તમારા રોગ ન આવે કાંઈ. કોઈ જાતનું ખૂબ છે. આ ચોપડીમાં છે એ બધું વાંચજો અને ખેડૂ અપનાવજો. આજથી નિયમ લેજો કે અમે આજથી ભાઈ તો લેવડો રમેશભાઈ, પણ અમે એમ કહીએ છીએ કે અહીંયા વાતો ઘણી થાય કે ભાઈ માંડવે બારો જઈને માવા ખાજો, પણ આ સંમેલનમાં ભેગા થયા પછી આપણી ગાયું, આપણી માયું ને આપણી જમીન જો આપણે સાસવીને તો કોઈને આપણે લાંબો હાથ નહીં કરવો પડે. કતલખાના બંધ કરવા માટે હમણાં સંમેલન તો 5 દિવસનું, ક્યાં અમદાવાદ, પણ કતલખાનું એની મેળે બંધ થઈ જાય જો આપણે હિન્દુના દીકરા હોય, ઘેરે ઘેરે ગાયું બાંધી અને ન યોગ્ય લાગે તો ગામો ગામ ગૌશાળા કરી, ઓટોમેટિક ગાયું બંધાઈ જવાની. અને એ ગાય જો કોઈ છોડી જાય તમારે આંગણેથી તો અમને કહેજો, બેઠા છે જવાબદાર છીએ. એ તો આપણે કરવું નથી, વાતો જ કરી. ગાયું બસાવો, કતલખાના બંધ કરો. હવે આપણે ત્યાં રેકડીવાળો ભંગાર લેવા આવે અને આપણે ભંગારનો બીજી વાર આવે રેકડીવાળો વયો ન થાય, ઘર ભેગો ન થાય. હે, આપણે વેસવાવાળા હિન્દુ છીએ, ઉગાડવાવાળા હિન્દુ છીએ, કાપવાવાળો તો ખાટકી છે. એટલા માટે આપણે જો આ કરવું હોય તો એક ગાય 10 વીઘાનું તમારી ખેતી હાંસવે અને તમારા જીવનને હાંસવે. હે રમેશભાઈ કરી બતાવ્યું, અને અમે કરી બતાવ્યું. હાલો જોઈ જાઓ તમે ક્યારે. અને આ તમારે હામ ઊભો ડૉક્ટર કહે ત્રીજો હુમલો ફૂલ. હવે મેં કીધું 50 છે ને હજી તું જોઈ લે 50 જીવ બોલ. હે કાંઈ આમાં બધું હેટક ફેટક બધું ભાગી ગયું. મેં કે નળી જોતો, મને કે નળી સાફ થઈ ગઈ. એટલે આ તો નિજ અનુભવ સુનું ખગેસા બીનું હરિભજન વિના મીઠાઈ નહીં કલેસા. તમે અનુભવ કરો. અહીંયાનો આ ભાઈ ત્યાં જ્યાં બોલા આપણે બારિયા ભાઈ, એને 2 કિડની બંધ હતી, હાવ બધું મૂકીને મેળી ગાયના ખાલી ગૌમૂત્ર પીવો, 2 કિડની ચાલુ થઈ ગઈ. વિચાર તો ખરો. અમે તો અત્યારે અર્ક ગાયનો ઉતારી, ગમે માણા અર્ક પીવે તો એનો રોગ ન આવે, અને અમે ઘણું કરીશું ગાયનું. એટલા માટે આપણે ગાયને પાળો, અને ગાય આપણી માં છે, એની ઉર્જા શક્તિ. ભલે દૂધ ન આપે, ખાલી એનું ગૌમૂત્ર રાખો ને ઘરમાં તમે પીવો ને તો અમૃત છે. એટલું કહી અસ્તુ જયા ભાગીગા. અને હું તમારી પાસે માંગણી કરું છું, સાધુ સંતોનો સન્માન થાય. બસ સાધુ હંમેશા હોનાની હાથીની અંબાડીમાં તો આમ એની જોડી ફેરેલી હોય, બીજા ઉસાદ કરો. બોલો ગૌ માતાની. આજે આપણે આ ગૌ માતાના પ્રસંગમાં ભેગા થઈ છીએ તો ભાઈઓ વેસનો મૂકશું અને બહેનો ફેસનો મૂકશું. અસ્તુ જયા ભાગીગા. બહેનો ખૂબ ભલે ફેશન કરશું, પણ આપણી બેન દીકરી એવી હોય કે જાણે જગદંબા જેવી અંગથી પગ સુધી એનું અંગ ન દેખાવું જોઈએ. એટલે ટૂંકા કપડાં પૈસા ઝાઝા લે મારે બેટા. આ શું જરૂરી ફેશનની છે? એટલે હું તો દેશ વિદેશમાં જાઉં, પણ ત્યાં તમે જો મુસલમાનના બેનું દીકરીઓ ગુરખો પહેરે છે, એમ આપણી ભારતની માં કહેવાય. હે માં કીધું ને કે ધન જીજા બાઈને જા શિવોજી પાયકો હતો તલવાર કેરી ધારથી, હિન્દુ ધર્મ રાખ્યો હતો. હે જનેતાઓ, તમારી પાસે અમે અપેક્ષા રાખી છત્રપતિ શિવા જેવા કોઈ ભક્ત, કોઈ દાતાર એવા જન્મો તમારી પાસે અપેક્ષા એ રાખી છીએ. હવે મેં ઓલી વાત કરતો હતો ને કે બાળક કેમ નાનું હોય તો એને બધી ખબર પડે, ગૂગલની ઓલી એનું કારણ શું છે કે મમ્મી હાલતા જાય ને ચાલતા ચેનલું ફેરવા કરે, બાળક જન્મે તી જ આવે ને. એટલે મા જીજાબાઈ રામાયણ ગીતા પાઠ કરતી હતી, અને એટલા માટે શિવો પાક્યો હતો. એટલે માતા ઉપર અપેક્ષા રાખી કે ભેળપૂરી બંધ કરો, ઘેરે ખાઓ, અને હારા મારા દીકરા જન્મ આપો, એને દૂધ પાવ. ભેંનું દૂધ બંધ કરો, પછી કોથળીનું દૂધ મરે, કોથળીઓ થાય પછી કોથળીઓ પીવે ગમે એ જાતની. બોલો ગૌ માતાની અપાગીગાની. બાળક એ બોલી તોતડી ભાષા કાંઈ 2 શબ્દો કટ્ટા બોલાઈ ગયા હોય
તો માફ કરજો, તમને બધા વંદન છે. ને અમારે આવવાનો કાર્યક્રમ બીજો છે, સવારે ગૌ કથા અમારે છે. ને આપણે આવતી 22 ગૌ યજ્ઞ છે. આપણે શું લેવા ગૌ યજ્ઞ કરવાનું શરૂ, ગૌ માથે જ અમારે બધું લીજો. ને આપણે આખો ભારત સામાન્ય ન ગણાય. હા, એમાં ગુજરાત ને કાઠિયાવાડ તો કોઈ દી સામાન્ય નથી ગણી. હું કે કાઠિયાવાડમાં કોઈક દી ભૂલો પડ્યું, ભગવાન તારા એવા કરું સન્માન કે તું સ્વર્ગ ભૂલાવું શામળા. એ ક્યારે ભૂલાય? માણા સપત જાતના ભોજન ખવડાવે, પણ આ જેવું દેશ છે કે એને પોતાના દીકરો વરોંધીને આપી દીધો. સગાળશા સગાવતી ત્યારે ભૂલો પડે, બાકી વેવાય બાણા ખેતીને વિયો જાય છે. હે, આ દેશ છે આપણો, આ કાઠિયાવાડ છે, આ સામાન્ય નથી હો. માણા દાન દઈ દે ધન દોલતના, પણ કોઈ બાઈના દાન દઈ દે. આવો આ જલો બાપો જા, બાપા જા. હે, હજી આમ કરી વા જો ભગવાન શેરી રહ્યો, પાછો ન થયો. આ આપણો કાઠિયાવાડ, આ કાંઈ સામાન્ય નથી. આ દેશના કાઠિયાવાડો સામાન્ય છે જ નહીં. પણ આપણી વૃત્તિ અને બુદ્ધિ બેડ મારી ગઈ છે. માટે કાંઈક જાગૃતિ માટે ગાયનું દૂધ, ગાયનું ઘી અને ગાયનું માખણ ખાઓ. તમે ગાયનું ગૌમૂત્ર ચાલુ કરો, હાર્ટ એટેક કાંઈ આવે મને કહેજો, તમે તારું તમારી ભેગો છો. વસ્તુ ત્યાં ભાગી ગયો. આ તમને ભાળીને બોલવાનું બહુ મન થાય. ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ. ગોવિંદ બાપાના હસ્તે સંસ્થાને કોમ્પ્યુટર અર્પણ થઈ રહ્યું છે. તાળીઓથી વધાવી લઈએ. ભાઈ શ્રી છે તે યુવા સાથી જે ગોપાલભાઈ ભુવા, જે આ સંસ્થાને ખૂબ મદદ કરી રહ્યા છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગોપાલભાઈ વિશે રમેશભાઈ બે વાત કરો. જો કે આ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો મળ્યા છે, આવા તજજ્ઞો જે વૈજ્ઞાનિકો શીખવા માટે આવે એમની તમામ સુવિધા ફ્રી. અને આજે પણ એમના અંતરમાં એવું થયું કે આ ગાય આધારિત કૃષિ આપણા રાષ્ટ્રને પ્રાણવાન બનાવવાની મૂળની વાત ચાલતી હોય, તો એમણે એવું સંકલ્પ કરી અને તાત્કાલિક નક્કી કરી અને અમારી સંસ્થાને એક કોમ્પ્યુટર દાનમાં આપે છે. અને એની ઈચ્છા એવી છે કે તમારી સંસ્થા આખા દેશ સાથે જોડાય, વિશ્વ સાથે જોડાય. તો આપણે સમયે હું એમનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અંતકરણ વિનંતી કરું છું કે તેઓ એમના ટૂંકા સંક્ષિપ્તમાં 2 શબ્દો આપણને કહેશે. જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આગળના ક્રમમાં આપણે એમને ઘણા વખતથી બેસાડ્યા છે, વડીલ પણ છે. પૂજ્ય જગતગુરુ સૂર્યાચાર્ય કૃષ્ણાનંદજી ગિરિજી મહારાજ, જૂના અખાડા મહારાજ, સૂર્યપીઠ આંતરરાष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेना द्वारका, આપણને આશીર્વચન આપશે. आज के पवित्र कार्यक्रम में यहाँ रमेश भाई ने बुलाया है. मंचस्थ सभी संतगण, मेरे खेडूत भाई, आप सभी को देख के ऐसा लगता है कि ये मेला बहुत छोटा है. कि आप सब लोग नहीं अपने साथ में लाए लोगों को, इसका मुझे थोड़ा दुख लग रहा है. कि ये अद्भुत मेला है. इस अद्भुत मेले का अर्थ यदि अगर आप घर घर में पहुंचा सके तो ही इस मेले का आपको आनंद मिलेगा. मरी हुई खेती को जिंदा रखने के लिए रमेश भाई ने आज जो आपके अंदर ये प्रयास करके आपके लिए आयोजन किया है, इसमें आप लोग कहीं कम लग रहे मुझे. अड़तालीस साल हो गया स्वतंत्र भारत को, पर कहीं भी खेती की उत्पन्नता नहीं है. मेरे पहले वक्ता ने सभी ने कहा है कि देश में ये क्यों ऐसा हो गया है. भारत में जो यदि इंग्रज नहीं आए होते तो हमको नहीं मालूम होता कि ये विष दिलाने वाली गाय हमारी गाय के ऊपर छुरा चलाएगी. एक भाई ने कहा था कि ये जर्सी गाय, शास्त्री जी ने कहा था ये जर्सी गाय जो है सच में पॉइजन है.
पर हमारे घर घर में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा इनकम देने वाली जर्सी गाय ही हम लोग बढ़ा रहे और हमारी गौ माता को काटने के लिए भेज रहे। और भेजते तो ऐसे नहीं भेजते, बोलते दूध नहीं दे रहे, इसको जरा उधर छोड़ने जा रहे हैं। हमारे विश्व हिंदू सेना के गौरक्षक हर जगह में है। कहीं ना कहीं वल्लभ भाई को कह देते हैं कि वल्लभ भाई थोड़ा फोर्स भेज दीजिए, गाय जा रही है। अभी बापूजी ने कहा कि हमारे ही लोग कत्ल करने वाले लोग हैं, मुस्लिम भाइयों को दोष दे के कोई अर्थ नहीं है। वो खाटिक है, वो बरोबर है, पर ये कब तक चलेगा? जब तक आपको अपनी गाय की कीमत नहीं समझेगा तब तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। इसलिए आप कम है यहाँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लोग जरूरत थी। मैं ऐसा अपेक्षित था कि कम से कम 25-30 हज़ार लोग आएंगे और हर व्यक्ति अपने गांव में जाके कहेगा कि ये रमेश भाई ने कितना बढ़िया खेती बनाया है, ये एक गाय के गोमूत्र से बना हुआ खेती कितना उत्पन्न दे रहा है। ये मिसाल देखने के लिए उन्होंने आज खुद इतना सारा, आप देखिए कि कितना निकाल के रखा है, ये लाइव है। ये सबको देखने की जैसी जरूरत है। विदेशों से लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं, इतना निकलना कैसे है संभव। यही अंग्रेजों ने कहा था कि ये भारत देश कैसे समृद्ध हुआ है और इसकी ताकत क्या है। तो ताकत के पीछे तो उनको ये मालूम है कि इनकी खेती किस पर चल रही है, तो ये गौ माता के ऊपर चल रही है। और गौ माता का क्या इतना बल किसी को मालूम नहीं था, उसके इलाज नहीं मालूम था। बापू ने कहा कि हम लोग अंगूठा छाप लोग है, सही बात है, पहले लोग अंगूठा छाप ही थे और है, पर उनके पास गोमूत्र का उपयोग क्या था ये बहुत ज्ञान था। आज उस ज्ञान को हम लोग बाजू रखा है और इंग्लिश दवा के पीछे पड़े हुए। एक रोग का 2 रोग तैयार हो रहा है। एक रोग अच्छा होता है, दूसरा रोग खराब हो जाता है, दूसरा वापस दूसरी दवा लो। अंग्रेजों ने कितना नुकसान किया है मालूम है आपको? एक कैंसर पहला किसी को नहीं मालूम था, एक टीबी किसी को नहीं मालूम था। अभी एक नया फैड आया है, स्टैंड लगाना। ये विदेश में स्टैंड 15 रुपए का आता है, यहाँ 8 लाख रुपए भी आप लोग बिठा के लेते हैं। इन्हें कितना गुना कमा रहे ये आप लोग को नहीं मालूम है। इसलिए विदेशी टालो, विदेश से जो भी आपके यहाँ आ रहा है वो जहर आ रहा है, इतना सोच के चलिए। यहाँ पर रमेश भाई जो मेहनत कर रहा है आज 8 साल से, आज ये मेरी दूसरी विजिट है यहाँ पर, या प्रैक्टिकल काम देख रहा हूं। आप लोग के यहाँ भी वास्तव में जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर एक एक गाय अपनी लगा के रखिए, उसका दूध, उसका घी, उसका छाछ आप भी खाइए, दूसरे भी घर में दे दीजिए। जिसके घर में गाय नहीं उसको अनुभव दीजिए। ऐसा मत करिए, घी खाइए आप, दूध पिए आप, पर छाछ तो किसी को दीजिए, और किसी को नहीं दिया तो कम से कम खेती में एक अच्छी दवा समझ के छांट दीजिए, जिसकी ताकत आपको मालूम पड़ेगी कि क्या है।
हम लोग सब खाते हैं और भूल जाते हैं। खरीदते क्या है तो गुटखा, खरीदते क्या है तो मसाला। ऐसा मत करिए। वास्तव में आज सभी संतों ने कहा है कि व्यसन छोड़ो और घर की व्यवस्था को जोड़ो। गौ माता को कैसे आप घर में रख सकते हैं, वही व्यसन में डालने वाला पैसा गौ माता के लिए आप खर्च करिए। अगर वो दूध नहीं देती है तो कम से कम उसका गोबर और खत आपके घर में वापस रखिए। आप देखिए उधर एक टैंक लगाया है जिससे गोबर गैस भी हो रहा है। ये सुविधा, एक गौ माता दूध नहीं देती है तो गैस देगी। आज गैस का कीमत हो गया 800 रुपया। तो आपकी बचत तो बहुत है। आपके वेतन का पैसा महीने का रोज का अगर 50 रुपया है तो कम से कम महीने का 1500 ऐसे ही बच जाता है। तो गौ माता को 1500 का चारा तो लगेगा ही नहीं। कुछ आप सुधारो, कुछ घर की बहुरानी सुधारेगी, क्योंकि गौ माता का संभाल तो वो करेगी, आप करेंगे नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में जब तक खुद घास की मशागत नहीं करेगा, जब तक उसको गाय का अर्थ नहीं समझेगा। और मैं आपको इतना विश्वास कराता हूं कि मैंने कई घरों के अंदर गाय को किस तरह से संभालना है ये मैंने प्रैक्टिकल जाके दिखाया है। आप लोग दूध बच्चों को पिलाते नहीं है, पर आप गाय का दूध बच्चों को पिला के देखिए, आपके बच्चे के अंदर इतनी विद्वत्ता निर्माण होती है कि आप वो करते नहीं है। बच्चों को सुबह में क्या नाश्ते में देते हैं तो आप ब्रेड दे देते हैं। ऐसा मत करिए। जो बीमारी चीज है वो मत दीजिए। मैदा वाला कोई चीज मत खिलाइए। गौ माता का एक कप दूध पिलाइए। एक कप दूध उस बच्चे के जीवन में इतनी विद्वत्ता निर्माण करेगा कि आपका बच्चा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन माताओं, भाइयों, ये प्रयोग मैंने अपने आश्रम में करके लिया है। आज मेरे पुणे के आश्रम में गाय का दूध गई 12 साल से बच्चे पी रहे। उनकी बुद्धि, उनका मैपिंग किया हमने। 95% के नीचे कभी भी उनका रिजल्ट नहीं आया है। एक गौ माता के दूध का प्रताप है। मेरे बाजू में एक दूसरा अनाथालय है, वहां रेगुलर दूध चलता है भैंस का, उसका रिजल्ट है 33%। बोलता है स्वामी जी जादू करके उसको कोई पढ़ाता होगा। तो एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला मैं जादूगर हूँ गौ माता के लिए, गौ माता का दूध पिलाता हूँ, यही मेरी जादू है, इससे बड़ी जादू कोई नहीं है। अभी 3 साल हो गया उनका वही दूध का पिलाना चालू है। आज उनके सारे आश्रम के बच्चे का रिजल्ट कम से कम 65-70% चल रहा है। आप बताइए आपके बच्चे के घर में भी ये दूध पिलाना चाहिए कि नहीं चिल्ला? आप अपने बच्चे के लिए प्रयोग करेंगे क्या नहीं करेंगे? आपको शूर योद्धा अगर बनाना है, शिवाजी जैसा बनाना है, तो आपको गाय का दूध ही पिलाना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दूध एक दासी ने रो रहा था, इसलिए उनको दूध पिलाने के लिए दिया। जीजाबाई अपने रूम में बैठी थी आराम करने के लिए, यहाँ शिवाजी महाराज रो रहे थे। उन्होंने कहा
यहाँ रो रहे हैं, माता जी अंदर है, इसलिए वो अपना दूध पिलाने के लिए ये कर रही थी। वहां से वो दौड़ के आई, एक दासी जाके बोले वो दासी अपना दूध पिला रही है। वो दौड़ के आके बोले कि तू क्या कर रही है? बोले माँ साहेब, मैं इस बच्चे को रो रहा था तो मैं महाराज जी को दूध पिला रही थी। तो उसने कहा कि देख, तू माँ है, मैं माँ हूं। यदि अगर तू गाय का दूध पिलाई होती तो मुझे दुख नहीं लगा होता, लेकिन तू कायर दासी, मुझे मेरा बेटे को कायर नहीं बनाना है, मुझे छत्रपति बनाना है, तो मुझे शेरनी का ही दूध चाहिए, तेरा दूध नहीं चाहिए। तो वैसे आप जर्सी गाय का दूध मत पिलाइए, उसको देसी गाय का दूध पिलाइए, तो बच्चा आपका शेर जैसा हो जाएगा। और आपके गांव में वल्लभ भाई कहाँ गए? वल्लभ भाई, आपको मैं एक हृदय से बोलता हूं, रमेश भाई जैसे व्यक्ति को आप गुजरात सरकार को ये जाहिर रीते आपको बोलता हूं कि इनको राष्ट्रीय पशु का अच्छा संगोपन करने वाला व्यक्ति बोल के इनको एक कृषि अवार्ड देने के लिए आप गुहार कीजिए। यहां गुजरात शासन में तथा केंद्र शासन में कृषि मंत्रालय हर साल आपके आयोग से एक नाम मांगते हैं कि आपके यहाँ, आपके राज्य में अच्छा गौरक्षक, अच्छा पशुपालक, अच्छा कृषि पालक, उसका नाम हमें दीजिए। ये भारत सरकार भी मांगता है और राज्य सरकार भी मांगता है। मेरे आपको गुहार है कि एक रमेश भाई का नाम अग्रगण्य रूप से आप दीजिए, और आने वाला 15 अगस्त का जो कार्यक्रम दिल्ली में होगा वह उसको राष्ट्रपति के द्वारा करने के लिए आप प्रधानमंत्री को ये हमारी तरफ से संदेश दे दीजिए, ऐसी आपको हमारी विनंती भी है। भाई लोग, आप लोग सब राजी है क्या? नहीं? एक व्यक्ति को अवार्ड मिलता है भारत सरकार का, वो पैसे से तुला नहीं जाता है। भारत भर में एक उसकी मिसाल होती है कि रमेश भाई जैसा एक अच्छा काम करके दिखाने वाला व्यक्ति आप भी बनो, आपका भी सम्मान होवे, इसलिए मैं उनको ये अवार्ड देने के लिए कह रहा हूं। हम लोग जब देश के काम के लिए निकलते हैं तो हमको मालूम है कि कितने लोगों को क्या मिलता है, लेकिन आज आपके पास एक 30-35 हजार आदमी होते तो दूरदर्शन आपका बोल देता, या 30-35 हजार लोग आए, इसकी सरकार नोंद ले। या तो अभी आयोग के अध्यक्ष बैठे, इनकी सारी रिपोर्ट राज्य सरकार तो लेगा ही, पर यदि आप 30-35 हजार लोग होते तो इस राज्य का पशु संवर्धन मंत्री और कृषि मंत्री इसका अग्रगण्य रूप आके हाथ जोड़ के बोलता कि रमेश भाई आप जो बोलेंगे हम करने के लिए राजी है। आपको यही बोलता हूं कि इस देश के अंदर अभी 28 तारीख को हमने बोला है कि देश के अंदर भैंस का दूध का भाव 50 रुपया हो गया है। यदि अगर 80 रुपया गाय का दूध का करेंगे तो गाय का महत्व मालूम पड़ेगा। कोई कसाई के पास काटने के लिए नहीं भेजेगा उसको, वो कहेगा कि मेरे को 80 रुपया अगर मिलता है लीटर के पीछे तो मैं गाय को क्यों बेचूं। आज पंचगव्य के लिए शास्त्री जी ने बोला, बहुत अच्छा मैं सुन रहा था और बहुत ही अच्छा बोला। ये पंचगव्य का अर्थ जिसको मालूम पड़ेगा वो गाय को कभी भी घर के बाहर नहीं रखेगा, घर के अंदर ही रखेगा। लोग पहले गाय को आंगन में रखते थे,
लोग पहले रोज सुबह सूरज खुलने से पहले गाय का गोबर का छिड़कारा मारते थे। अभी तो लादी आ गया, लोग भूल गए। लेकिन उस गोबर से वहां कभी भी बीमारी नहीं आती थी। हम लोग सीमेंट कंक्रीट कर दिया, बोल दिया कि हम मट्टी में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। पर आज भी मैं आपको बोलता हूं, आज भी गोबर का बोछारा जमीन पे लगा दीजिए, खाना उस पर बैठ के खाइए, वो ऊर्जा का आनंद देख लीजिए, टेबल पे बैठना भूल जाओगे। ये हम लोग ने किया हुआ अनुभव है। ऋषि मुनि ने यही गोबर के छाना जो करते हैं जमीन के ऊपर, उस पर बैठ के सारी विधियां करते थे। उसका कारण ये है कि वहां ऊर्जा मिलती है। आप भी घर में इसी तरह का करेंगे तो आपको क्या ऊर्जा मिलती है ये हमको बोलने की जरूरत नहीं, आपके अनुभव का। अगली बार जब हम आएंगे ना तो आपसे जरूर सुनेंगे कि ये ऊर्जा क्या मिली।